ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ RSS ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ करवा के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पॉलिटिक्स करना। यूपी की पुलिस को ये पता चल सके कि यूपी में जितने वहाँ पे लोग थे जिन्होंने ये आँखों देखी ये घटना देखी है, उनके प्रूफ्स, उनकी स्टेटमेंट भी मैटर करती है। जिन्होंने अपनी आँखों से देखा था उस दिन मोनू मिश्रा को फायरिंग करते हुए, गन्ने के खेत में भागते हुए, उनकी स्टेटमेंट्स को भी लेना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे लाइव आउण दे पिछे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, किसान एकता जिंदाबाद, रोहित शर्मा जी। अज दे लाइव आउण दे पिछे ये कारण है कि अज मोनू मिश्रा जी नूं हिरासत दे विच लिया सीगा और उन्होंने बहुत सारे अपने वल्लों सबूत लियाते ਜਿਹੜਾ कि पुलिस ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। 302 ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅੱਖੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ 302 ਦੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि अगली मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था, अगली गाड़ी भैया बैठे थे। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पॉलिटिक्स करना। सो हाथ जोड़ के बेनती है, अगर कोई कुछ लोग, मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, कुछ लोग यूपी से भी देख रहे हैं मुझे, तो हाथ जोड़ के बेनती है इस टाइम पर आप आंखें खोल के देखिए कि सच क्या है। हमने बहुत बार वो वीडियो देखी है किस तरह से इन्होंने कुचला है लोगों को। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये आम लोगों की लाइफ थी। जिस तरीके से इन्होंने कुचला है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को मारा है, मैं उन लोगों की फैमिलीज को मिली हूँ। आप सोचिए उन बहनों का क्या हाल था और उस माँ का क्या हाल था जिसका बेटा एक प्रोटेस्ट के लिए आया था, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, और उसको मार दिया गया। ऐसे गुंडों का, ऐसे गुंडा राज यूपी से ख़त्म होना चाहिए। और बेनती यही करते हैं कि आप सब लोग अभी बाहर निकल के आइए इनके खिलाफ, क्योंकि आज इनके साथ हो सकता है, कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और किसान, हम पहले भी बोल चुके हैं, किसान अपने लिए नहीं बैठे बॉर्डर्स पे, सभी लोगों के लिए बैठे हैं प्रोटेस्ट के लिए। 3 बिल जो हैं वो विस्तार रूप से आई थिंक सो सभी को पढ़ने चाहिए। एमएसपी तो वैसे ही नहीं मिलती यूपी में, गन्ने का रेट 2-2 साल तक पैसे नहीं मिलते, लोगों को इतने दुखी हैं, तो कैसे कैसे गुजारा होगा लोगों का, आम लोगों का कैसे होगा? असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो जमाखोरी है, जमाखोरी कर करके महंगा बेचेंगे, कहाँ से खरीद लोगे आप लोग? ये सभी वर्ग की लड़ाई है इस टाइम पर, लेबर क्लास की भी है इसमें, दुकानदारों की भी है, सभी की है। ये गवर्नमेंट खुद बिक चुकी है अंबानी अंडानी के हाथ, पैसे वाले लोगों के हाथों पे बिक चुकी है। इस वजह से ये आम इंसान लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल से बॉर्डर्स पे है, वो आप सब लोगों के लिए ही है, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। आप सरसों के तेल की बोतल देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुकी है, डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुका है। और यही लोग जो हैं ये जमाखोरी कर करके महंगा करके बेचेंगे और आम लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो ये जो लड़ाई है सभी की लड़ाई है। सो बेनती यही करते हैं, जो आज मोनू मिश्रा को हिरासत में लिया गया है उसको कंटिन्यूसली वो रखा जाए, क्योंकि उसके ऊपर 302 का पर्चा है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में, खास करके यूपी की पुलिस को ये पता चल सके कि यूपी में जितने वहाँ पे लोग थे जिन्होंने ये आंखों देखी ये घटना देखी है, उनके प्रूफ्स, उनकी स्टेटमेंट भी मैटर करती है। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन मोनू मिश्रा को फायरिंग करते हुए, गन्ने के खेत में भागते हुए, उनकी स्टेटमेंट्स को भी लेना चाहिए। मैंने एनडीटीवी के एक चैनल पे देखा, एक चैनल पे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट ली, तो उन्होंने बोला कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हमने सभी को बोला वीडियोस भेजें। देखिए वीडियोस तो ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी हैं, बट जो वहाँ पे लोग हैं, हाथ जोड़ के बेनती है आप उनकी स्टेटमेंट लें, नहीं तो यही रहेगा कि गृह मंत्री का बेटा है, गृह मंत्री के बेटे को छोड़ा जाएगा। ये ऊपर से योगी जी ने भी बोल दिया है जो सबूत होंगे, सबूत तो हैं
आंखों देखी इतनी बड़ी वीडियो बाहर आ गई, उनके नाम पे गाड़ी है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लोगों ने देखा है उनको वहां पे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तो फिर तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो है ये गुंडा राज है यूपी में। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे ने भिंडरावाला जी की फोटो की टी शर्ट डाली थी, उसको बब्बर खालसा ग्रुप बना रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये बीजेपी वाले, इनका काम ही यही है। गुजरात में भी इन्होंने दंगे फसाद करवाए थे, जाट आंदोलन में भी इन्होंने दंगे फसाद करवाए थे। आम लोगों को आपस में कोई तंगी नहीं है, ना हिंदू को किसी से तंगी होगी, ना सिख को तंगी होगी, ना मुसलमान को तंगी होगी। ये आपस में इनको लड़ाना चाहते हैं और इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहती हूं, सिख कौम ने हमेशा आगे आके हमेशा लोगों की मदद की है, हमेशा लंगर लगाए हैं, हमेशा मदद करते हुए सिख कौम ने हमेशा हर किसी की मदद की है। और दिल्ली की बात करते, कितनी बार तो हमारे गुरुओं ने दिल्ली जीत के छोड़ दी। ये ऐसी बातें हम तो ना तो रिलीजन के पक्ष में बात करते हैं, हम तो सोचते हैं कि सबसे पहले एक इंसान बन के देखो। हिंदू सिख मुस्लिम से ऊपर उठ के एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, वो बन के देखना चाहिए। इस टाइम पे सारे धर्म आई थिंक सो यही सिखाते हैं कि सब धर्मों में इंसानियत तो सिखाते ही है ना। क्या राम जी या कृष्ण जी ये बोलते थे कि लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो? हर कोई धर्म इंसानियत सिखाता है। जो भी जो इंसान सही में धर्म को मानता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो असल में गुरु का सिख है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो अच्छा ही सोचेगा। सो हाथ जोड़ के बेनती यही करते हैं हम कि आप इंसाफ की बातें करें, इंसाफ की मांग करें उन लोगों के लिए जो बेचारे उस दिन शहीद हो गए। और 12 तारीख का उनका भोग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे उनके इंसाफ के लिए, क्योंकि आज उनकी फैमिली है, कल को आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो हमें ये गुंडा राज, ये मोनू मिश्रा, ये बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। क्योंकि अगर ये अच्छी गवर्नमेंट होती तो हमें ऐसे बात नहीं करते। ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ये गुंडा राज है। उसके बाप ने सीधा सीधा बोला है कि मैं एक एमएलए मंत्री से पहले मैं कुछ और भी हूं। तो वो कुछ जो और हैं वहां के आम लोग जानते हैं वो क्या है। और ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटाना चाहिए। ये हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है। और खास करके यूपी में तो डिक्टेटरशिप ही दिख रही है, डेमोक्रेसी तो दिख ही नहीं रही। और पुलिस प्रशासन, जो हर कोई ऑफिसर शपथ लेता है सबसे पहले इंसाफ की बात करने के लिए, ईमानदारी की बात करने के लिए, उनको ईमानदारी और इंसाफ की बातें करनी चाहिए। और खास करके इन लोगों को, इन गुंडों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। अगर इनको छोड़ा गया तो इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा सभी को। मैं ये आपको बोल देती हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए और इंसाफ की बात कीजिए, सच की बात रखिए आगे। सच से ऊपर कोई नहीं, और ना ही किसी ने कुछ लेके जाना है, ना किसी ने लेके आना है। सच सामने आता ही है और इस गुंडों को ख़त्म कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद। मोनू मिश्रा जेल से नहीं छूटना चाहिए। और हमारे भाई हैं, जितने भी भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने उस दिन आंखों देखी ये सब कुछ देखा था, वो जाके पुलिस को बयान लिखवाएं और अपनी स्टेटमेंट्स दें। धन्यवाद।